guys, welcome back to my channel. आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ what I teach my 2-year-old at home और how to start teaching your 2-year-old at home. एक साल पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया था on how to start teaching kids to write or how to start teaching your 3-year-old to write and you guys had shown me lot of love. So इसी के साथ अब मेरी बच्ची जो है मतलब my second child is 2 years old, so I have started homeschooling her and I thought I'll share with you. So if you are new here, my name is Nidhi and I make a lot of entertaining content on my channel and I would love for you to subscribe to my channel. Now without further delay, I'll show you how I teach my 2-year-old. Okay, so the first thing I would recommend to start with, or you might have heard from many people, is to read to your kids. अब ये आपको लगेगा कि रीडिंग में क्या है, but it has various benefits, various advantages. सबसे पहली बात है कि जब आप बच्चों को रीड करते हैं स्टोरीज, दे आर नॉट जस्ट लर्निंग और दे आर नॉट जस्ट लिसनिंग बट दे हैव लॉट ऑफ वर्ड्स इन देयर वोकैबुलरी. उनके ऊपर काफ़ी सारे वर्ड्स हम डाल रहे हैं. फ्लुएंसी सीखते हैं वो लोग इंग्लिश में कि इंग्लिश की कैसी फ्लुएंसी होती है एंड दे आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिसनिंग कि लिसनिंग स्किल्स उनके इम्प्रूव होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, इमेजिनेशन एंड मच मोर. So story reading is must to them. As you might have heard it from everywhere, bedtime stories is a must. But मेरे केस में मैं उनको bedtime stories नहीं सुनाती हूँ. In fact, that's the best. अगर आप बेड टाइम स्टोरी सुना सको तो, बिकॉज रात को जब वो लोग सो के सुनते हैं तो उनकी वोकैबुलरी दिमाग में बैठ जाती है. विथ माई किड्स इट्स लिटिल डिफरेंट. दे आर लिटिल नॉटी. So if I read them bedtime stories, they don't sleep actually. So I do it in the daytime. Or you just have to read them 2 to 3 stories a day and it's done. So you don't have to buy different story books. So अगर आपके पास एक story book है, you can just repetitively read them one particular story. Like इस तरह की story books I would say that you prefer reading to them, which have a lot of pictures, little bit of text on it. So you know they get really interested with the books. एक ही story अब खत्म हो गई, वापस वही story बताइए. So इस तरह से मेरे पास 2-3 story books है. Now you don't have to really ask me like what story books I read them. These are the normal or the regular ones from India. I would say कि इसमें extra पैसे डालने की भी ज़रूरत नहीं है. You can get it from your local library. आप बच्चों को थोड़ी देर तक उस बुक से रीड करवाइए, फिर जाके वापस उसको चेंज करवा दीजिए. So any story book, but repeatedly keep on reading that and just 2 to 3 stories a day and they are good to go. So stories as I said कि उनकी जो literacy है वो काफ़ी improve होगी और उनका concentration and it has various benefits. And the most important thing is कि आपकी और बच्चे की जो bonding है वो बहुत अच्छी हो जाएगी when you read them stories and they'll come to you again and again and they'll love you a lot for this. So the first thing was reading. Now the second thing is singing to your child. When I say singing to your child means reading them rhymes or singing them rhymes and doing actions. Just one thing is that don't put CDs or don't show them YouTube. उससे बच्चा जो है राइम्स नहीं सीखता है. राइम्स जो है अगर आप उनको गा के सुनाओगे तो बहुत ही जल्दी सीखेगा. What I do with Dia is I just not sing her the rhymes but I also do the action like twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. Kids love this, they enjoy it और बहुत जल्दी पिकअप करते हैं इस तरह से राइम्स. सो बेसिक राइम्स जो हमारी चलती रहती है जैसे ट्विंकल ट्विंकल, जॉनी जॉनी, व्हील्स ऑन द बस, 5 लिटिल मंकीज और लंडन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन. सो अगर आपको नहीं पता है यू कैन जस्ट टेक आउट इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड 5 to 6 rhymes you can sing to them. उसके लिए आपको अलग से बैठने की ज़रूरत नहीं है. आप कपड़े फोल्ड कर रहे हो, कपड़े फोल्ड करते करते आप उनको वो राइम सिखा सकते हो और
just a little bit of time. It just takes 2 to 3 minutes in a day, but it will again help you to bond with your kids, and they will really enjoy it. This is also good for the working moms who are very busy and feel guilty of not spending quality time with your kids. Just read them rhymes or sing them rhymes, and they will enjoy it and they will learn out of it. The third thing which I do with Diya, and I would really recommend you, and I love it the most, are the flashcards. So I'll show you the flashcards. ये फ्लैश कार्ड्स जो है उनकी लिटरेसी, न्यूमरेसी सब सिखाएगा. सो दिस आर द अल्फाबेट्स फ्लैश कार्ड्स विच आई हैव. तो जब भी आप बच्चों को फ्लैश कार्ड सिखाते हैं तो व्हाट यू डू इज लाइक दिस फ्लैश कार्ड्स, इट हैज़ अ अल्फाबेट हियर एंड इट हैज़ अ ऑब्जेक्ट हियर. तो जब आप स्टार्ट करते हो तो आप पहले अल्फाबेट सिखाओगे, देन व्हेन यू वांट टू लेवल इट अप तो यू विल शो द ऑब्जेक्ट एंड यू विल आस्क देम द लेटर. सो दिस इज हाउ इट इज. बट 1 to 2 year ओल्ड के लिए फिलहाल आपसे फ्लैश कार्ड्स दिखाइए. फ्लैश कार्ड से बच्चे जो है बहुत क्विकली सीखते हैं, एंड यू डोंट हैव टू शो देम स्लोली. दिस इज ए, दिस इज बी. नो, शो देम फास्टर. लाइक दिस इज ए, बी, सी, डी, यू नो दैट फास्ट. तो उससे क्या होगा कि क्विकली जब चीज पास होती है तो दे रियली कीप इट इन देयर माइंड एंड दे लर्न इट वेरी फास्टर. सो यू आर नॉट जस्ट शोइंग देम द अल्फाबेट्स. मैंने 4 तरह के फ्लैश कार्ड्स रखे हैं. अल्फाबेट्स, देन numbers, again the same thing, you will go the same way with the numbers. Quickly जाना है 1 2 and it has the counting behind. तो जब आप level 1 पे करवा रहे हो तो आप सिर्फ उनको फ्लैश कार्ड सिखाओगे, बट जब आप level 2 पे जाओगे तो आप उनको फ्लैश कार्ड्स के बदले आप उनको ये काउंटिंग सिखाओगे कि how many are this, count, and they will say this is number 2. That's correct. So इस वे से आपको सिखाना है बच्चों को. I think I was holding it wrong. इस वे से आपको बताना है. With that you can show them shapes and colors. So shapes भी उसी वे से, like this is triangle, this is oval, this is rectangle, square. They learn it very quickly. When I'm teaching Diya alphabets, तो मैं उसको alphabets, सिर्फ alphabets नहीं सिखाती हूँ. I also show her the sounds like a, b, b. तो इससे क्या होगा कि वो लोग जो जॉलीफोनिक्स के साउंड है वो भी सीखते हैं इसके साथ. इफ यू वांट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो सेक्शन. मैं सारे लेटर्स के साउंड के साथ एक वीडियो बना के आपको जरूर दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से सिखाती हूँ. व्हेन इट कम्स टू लेटर्स, तो जैसे आप उनको कैपिटल लेटर्स सिखाते हो तो स्मॉल लेटर्स भी दिखाना जरूरी है. आई वुड सजेस्ट कि एक व्हाइट बोर्ड आप अपने घर पे जरूर रखिए. आई हैव दिस काइंड ऑफ बोर्ड विच हैज अ व्हाइट बोर्ड एंड अ ब्लैक बोर्ड. तो ब्लैक से मैं उसको चॉक की प्रैक्टिस देती हूँ. चॉक पकड़ने की चीज भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनको ये फर्स्ट 2 fingers की ग्रिप आएगी विच विल लेटर ऑन हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर राइटिंग स्किल्स. सो यू कैन जस्ट हैव अ बोर्ड लाइक दिस, या फिर आप कार्डबोर्ड में इस तरह से लिख के उसे लेमिनेट करके हमेशा के लिए रख सकते हैं. इनफैक्ट आई वुड से द सेम थिंग फॉर फ्लैश कार्ड्स ऑल्सो. यू डोंट हैव टू परचेज इट. आप खुद भी एक बड़े से कार्डबोर्ड में इस तरह से लेटर्स लिख दीजिए, शेप्स कर दीजिए, कलर्स बना दीजिए, नंबर्स लिख दीजिए और फिर उसको कट करके लेमिनेट कर दीजिए. आपके फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे एंड यू डोंट हैव टू स्पेंड मच अमाउंट ऑन दैट. व्हेन यू आर रीडिंग A to Z to them, तो when you are singing this song A B C D E F G H I J K, don't go fast with L M N O P. No, go slow, very slow with this. L M N O P. तो उससे उनको ये लेटर्स जो है वो दिमाग में बैठेंगे, बिकॉज द रियल सॉन्ग्स गो लिटिल फास्टर विद दिस थिंग्स, बट आप स्लो जाइए तो उनके दिमाग में बैठेगी ये चीज एंड दे विल अंडरस्टैंड दिस. और यू कैन जस्ट सिंपली से दैट A B C D, यू डोंट हैव टू सिंग. सो इस तरह से आप उनको सिखा सकते हो ओरल पार्ट में. व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो 1 और 2 साल के बच्चे जो है वो स्ट्रेट लाइन करना सीख जाते हैं. तो आप उनको मार्कर दे सकते हैं इस तरह से. मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड मार्कर देती हूँ दिया को व्हेन शी इज सिंपली ट्रबलिंग मी और मुझे घर का काम होता है. सो शी कीप्स ऑन राइटिंग ऑन दिस और वो स्ट्रेट लाइन बनाना सीखती है.
the goal is not to have a perfection here, the goal is to just start. और यू कैन जस्ट गिव देम अ ब्लैक बोर्ड एंड अ चॉक, तो वो चॉक से भी करना सीखेंगे, उनसे उनकी हाथों की ग्रिप बढ़ेगी। तो ग्रिप बढ़ाने के लिए पहली चीज है ये। सेकंड चीज है कपड़े सुखाने की पिन। आप उनको इससे बस ओपन क्लोज करने के लिए दे दे लेवल 1, तो उनसे ये फर्स्ट 2 फिंगर्स उनके जो है वो बैठेंगे, विच रियली हेल्प देम टू लेटर ऑन होल्ड द पेंसिल लाइक दिस इज द करेक्ट वे। अगर इस वे से वो लोग पेंसिल नहीं पकड़ेंगे तो उनको लेटर ऑन wrist पेन होगा या हैंड्स पेन होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू टीच देम। तो पहले हम प्रेप करेंगे उनको पकड़ने के लिए पेंसिल। सो दिस आर द लिटिल थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। सो इस तरह से मैं उसको सिखाती हूँ। तो थर्ड थिंग इज सच काइंड ऑफ वुडन टॉयज जिसके ऊपर थोड़ा सा ऐसा बटन हो। तो इससे क्या होगा कि जब वो लोग इस तरह से पकड़ते हैं, अगेन दे आर यूजिंग दिस 2 फिंगर्स, तो ये उनको राइटिंग स्किल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू कैन गिव देम योर नॉर्मल राजमा और लिटिल यू नो जो दाल होती है वो दाल आप स्प्रेड कर दीजिए और उनको बोले वो छोटी छोटी दाल पकड़ के किसी डब्बे में डालें, तो उससे भी उनकी ये जो फर्स्ट 2 फिंगर्स है वो एक्टिविटीज राइटिंग स्किल्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सो एज आई सेड, एज ऑफ नाउ यू विल जस्ट शो देम हाउ टू स्क्रिबल एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। सो बाय फार आई हैव शोन यू 3 थिंग्स। सबसे पहला है आप अपने बच्चों को रीडिंग करवाएंगे, दूसरा है आप उनको सिंग करेंगे, गाना गाएंगे, आप कोई भी लोरी भी गा सकते हैं या राइम्स नर्सरी गा सकते हैं, एंड द थर्ड थिंग इज फ्लैश कार्ड्स विच आई से लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फ्लैश कार्ड्स आपके पास नहीं है, आप इस तरह की बुक्स भी ले सकते हैं। इसमें ये 4-in-1 बुक है, इसमें लेटर्स आ गए, नंबर्स आ गए, शेप्स आ जाते हैं, कलर्स आ जाते हैं। सो इट हैज द हिंदी बुक एज वेल। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एनिमल्स सब आ गया, फ्लावर्स, बर्ड्स। So they really love this, watching this, and they understand things out of this, you know. So एक बार आप इसको read करवा दें, it doesn't take more than 5 minutes. Or you can purchase this type of charts. तो मैं तो इसको हमेशा बालकनी में लगा के रखती हूँ। सो एवरी नाउ एंड देन शी पासेस बाय, आई कैन जस्ट क्विकली गिव हर अ रीड। इस तरह से अल्फाबेट्स दोनों हैं, स्मॉल एंड बिग। फॉर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो आई हैव सेम सॉर्ट ऑफ चार्ट। तो सीखते रहते हैं बच्चे, हमें फिर अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन में वो लोग सीखते रहते हैं। सो ऑल दिस एक्टिविटीज विच आई हैव शोन यू डजंट टेक मोर देन 15 to 20 minutes a day, and your child would be really ready for preschool. जब वो लोग प्री स्कूल जाएंगे तो उन्हें फेमिलियर लगेगा ये सब जब उन्होंने किया होता है। अदरवाइज बच्चे डर जाते हैं, फिर वो लोग रोते हैं एंड दे फील लाइक alienated कि कहाँ आ गए हम, क्या हो रहा है ये सब। So if you have done all these things with them, they will really enjoy their first day in schools. The fourth thing which I would say is hands-on activities. Hands-on activities में इस तरह के wooden toys देती हूँ। ये puzzles है, matching है, इसमें ऊपर एक तरह से drawing है और अंदर है। So इससे बच्चा matching concept सीखता है और इस तरह से उनकी grip अच्छी होती है and their concentration and focus भी बढ़ता है इस तरह के educational toys में। The next thing is sorting. तो इसमें बच्चा जो है वो shapes sort करना सीखता है और उनको अगेन जो उनके कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होते हैं इसमें। सो दिस काइंड ऑफ एजुकेशनल टॉयज यू हैव टू गिव देम। द नेक्स्ट थिंग विच आई गिव हर इज दिस टॉय। ये टॉयज मेरे बहुत पुराने हैं एक्चुअली, हीथ के टाइम के टॉयज है। सो इसमें ये शेप्स है 3, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल. So she knows how to sort this, and also if she doesn't want to sort the shapes, I can also ask her to sort the colors ki green, blue and red, and she can easily do that. तो इस तरह के toys आप ले सकते हैं, तो इससे बच्चा जो है उसकी skills जो है वो improve होगी. So these are the things. Other than that, building blocks, Lego, very important for kids, क्योंकि इससे वो लोग क्रिएटिव होते हैं और काफी सारी चीजें सीखते हैं. एंड अगेन व्हेन दे ट्राई टू फिक्स द थिंग, तो उनकी फिंगर्स काम आती है जो उनको राइटिंग स्किल्स के लिए हेल्प करेगी. सो दिस हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो है ये टॉयज है, नॉर्मल टॉयज जो आप बच्चों को देते हैं, बट उनसे वो लोग काफी सारी चीजें सीखते हैं विच लेटर ऑन हेल्प्स देम in their school age. And now the last part is free play. Encourage your child to
प्ले फ्रीली, मतलब आप उनको इस तरह से वो लाइट वाले और शोर वाले जो टॉयज है वो लाके मत दे दीजिए। यहाँ पे बच्चा सिर्फ देख रहा है एंड ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग, तो उससे उनके कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाली है। बट या यू कैन गिव देम सिंपल टॉयज, जैसे कार्स है, डॉल्स है या साइकिल है। तो ये सिंपल टॉयज है, बट वो लोग एक्सप्लोर करते हैं कि ये सिंपल चीज से वो लोग किस तरह से और खेल सकते हैं। सो दे यूज देयर ब्रेन्स एंड दैट इज व्हाट वी वांट। सो एनकरेज फ्री प्ले, उनको बाहर लेके जाइए। बच्चों को बाहर की हवा सिर्फ आधे से 1 घंटे के लिए भी हम अगर दे दे, बच्चा क्लाइंब कर रहा है, कूद रहा है, जंप कर रहा है, भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, सो दिस ऑल थिंग आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर फिजिकल डेवलपमेंट। सो यू हैव टू सी कि ओवरऑल उनकी होम स्कूलिंग हो रही है, नॉट जस्ट विद द बुक्स एंड the writing part. We are encouraging them to have overall development. So that is all what we want. So quickly I'll summarize. सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको रीड करनी है सिर्फ 2 से 3 stories and it will be enough. The next thing is you will sing lullabies to them, you will sing nursery rhymes to them and with actions if possible. The third thing is flashcards. You can have of alphabets, numbers, shapes, colors, and it will really they will learn things very quickly and they will have a very good hold on their this basic concepts. The fourth thing which I told you was the hands-on activities. कुछ इस हिसाब से educational toys आपको दिखाने हैं, आपको बच्चों को देने हैं जिससे वो लोग sorting कर पाए और उनकी imagination skills और creativity बढ़ा पाए. So Lego और building blocks या फिर इस तरह के sorting toys. The last part which I said was encouraging free play and try to avoid screen time. Just limit it for 15 to 20 minutes a day and that too for the educational purpose. उससे बच्चा जो है वो dumb नहीं होगा and they will be open up to learn more and more things. So I guess मैंने आज आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि क्या क्या चीज़ें आप अपने 1 और 2 साल के बच्चों को सिखा सकते हैं. Now wait, don't go anywhere because मैं आपको बताऊंगी कि मैं आज दिया को क्या सिखा रही हूँ and how is she responding to it. There were 3 men living in one of the towns. One of them was leprous and the second man was bald and the third man was blind. His almighty God wanted to test them. So he sent them an angel in the shape of a human being. बोलो A B B K C D D E F triangle, rectangle, square, diamond, oval, semicircle, 1 2 3 bus, yes, airplane, very good, airplane. What is next? Dump truck, yes, very good. Car, yay. Shape. Taxi, say taxi. Helicopter. The wheels on the bus go round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The doors on the bus go open and shut, open and shut, open and shut. The doors on the bus go open and shut, all through the town. The babies on the bus go wah wah wah, wah wah wah, wah wah wah, all through the town. The mommy on the bus sits,
All through the town, the daddy on the bus say, I love you, I love you, I love you. The daddy on the bus say, one. A straight line, straight, straight, straight. One. Yeah. I prefer to give her this small size of crayons because when she holds this size of crayons, it helps her to form this grip 2 fingers की, तो इससे उसकी राइटिंग भी सुधरती है. बताओ, करो कलर करो. इस तरह से अगर आपके पास क्रेयॉन्स है तो तोड़ के बच्चों को दीजिए, तो उससे वो लोग पेंसिल पकड़ना सीखेंगे और उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होगी. एंड सेकेंड थिंग, इफ यू वांट टू प्रिपेयर देम टू राइट अर्लियर, गिव देम दिस सीजर्स. दिस आर चाइल्ड फ्रेंडली सीजर्स, प्लास्टिक की है और इनसे उनको कटिंग करवाइए. तो ये भी जो है ये 2 फिंगर्स का काम है, तो इससे भी उनकी पेंसिल की ग्रिप बहुत अच्छी होती है. सो दिस इज व्हाट प्रैक्टिकली आई मेक हर डू इन अ डे in different timings. So it really helps her to educate और उसको सब आ भी जाता है और काफी फन भी. Other than that कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं ऐड करना चाहूंगी और वो है, सबसे पहले आप अपने बच्चे को अब रूटीन पे डालना शुरू कीजिए if you haven't done it yet, because routine is something which will help them to understand things and also later on when they go to school तो उन्हें एक रूटीन फॉलो करना होता है, उन्हें एक जगह पे काफी देर तक बैठना होता है. So if you give them a particular routine they will get set into it, and later on if they have to follow a routine in school it will be a little easier for them. Also let them know how to accomplish a task. तो अगर आपने उनको कोई भी चीज दी है, चाहे आपने उनको कलर्स करने के लिए दिया हो या टॉयज से खेलने के लिए दिया है, गिव देम अ पर्टिकुलर टाइम एंड लेट देम फिनिश इट. सो व्हाट आई डू इज कि जब वो लोग किड्स टॉयज के साथ खेलते हैं, आई ऑलवेज आस्क देम टू क्लीन अप लेटर, सो दे नो दैट व्हेन दे आर प्लेइंग दे हैव टू लेटर ऑन क्लीन विद इट. नेक्स्ट थिंग इज टेक देयर हेल्प. आप 1 से 2 साल के बच्चों से भी हेल्प ले सकते हैं. फिर चाहे आप उनको बोल सकते हो कि हैंड मी दिस पर्टिकुलर लैडर, या मुझे वो स्पून दे दो, यू नो स्मॉल सच काइंड ऑफ थिंग्स, और गिव मी दैट पर्टिकुलर क्लॉथ फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यू कैन आस्क देम. तो ऐसी छोटी छोटी जो हेल्प है वो आप बच्चों से कर सकते हैं. उनसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड दे फील द पार्ट ऑफ द हाउस. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू टीच देम सोशल स्किल्स, जैसे कि बाहर कैसे बिहेव करना है. दे कैन नॉट बी स्क्रीमिंग लाउडली, दे कैन नॉट जस्ट थ्रो टेंट्रम्स. तो अब वो टाइम आया है जब हम उनको मैनर्स सिखाएंगे, प्लीज, थैंक यू और सॉरी बोलना भी सिखाएंगे. सो दिस आर द लिटिल थिंग्स विच आर लिटिल डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी एक्चुअली डू इन होम स्कूलिंग, बट येस इट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज 2 साल की उम्र है और हमें पता है कि हमें कुछ सिखाना है. सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम टीचिंग दिया. I am teaching her manners, I am teaching her to complete the task, and I am also teaching her to set a routine, that is to sleep on a particular time, to wake up at a particular time and to complete the task. जब खाना खाने बैठी है तो खाना फिनिश करके ही उठना है या एटलीस्ट थोड़ी देर तक तो बैठना है. So all this is possible only when you give your kids less screen time. So again and again I am stressing on same thing because जब आप ज़्यादा से ज़्यादा screen time दोगे तो आपका बच्चा जो है वो नम हो जाएगा and it would really not be possible to accomplish the greater task which will be coming later in the school days. So I guess आज का जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा. If yes, please give me a big thumbs up and subscribe to my channel because I will be coming up with the more homeschooling content. So yes, this is it. Bye. See you soon.